ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سعدیہ اٹھ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، میرے پاس آؤ، دیکھو میں یہاں ہوں۔ سعدیہ۔ میرے جسم کو جھٹکا لگا اور میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ دوسری طرف اپنے نام کی پکار مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ آواز یقیناً کمرے کے باہر سے ہی آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے یہ دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا جو اس وقت خالی تھا۔ میرا شوہر تقریباً 1 ہفتے سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ نہ جانے یہ دروازہ کس نے کھول دیا تھا۔ اب یہ ایک اور پریشانی تھی جو مجھے لاحق ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت وہمی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبے عرصے تک سوچتی رہتی، جس کی وجہ سے اکثر ہی میں ذہنی بیماری کا شکار بھی رہتی تھی، اور زیادہ سوچنے کی وجہ سے اکثر میرے سر میں بھی درد رہتا تھا۔ ابھی بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ دوبارہ سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ سعدیہ ادھر آؤ۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ آواز مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جس نے میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ایک دوست سے بات بھی کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے یہی کہا، یار تمہارا تو روز کا ڈرامہ ہے، پہلے بھی تو کسی طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ تمہارے اپنے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ یہ سب تمہارے دماغ کا پیدا کیا ہوا فطور ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تمہارا گھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی وہاں پر تقریباً 1 ہفتہ رہ کر آئی ہوں، مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اور ساتھ گھر کے باقی افراد بھی تو سکون کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ بھی ضرور خوفزدہ ہوتے۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بجائے، اسے سمجھنے کے بجائے، وہ الٹا مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اس سے اپنے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کروں گی، لیکن پھر چند دنوں کے بعد وہ خود ہی مجھے کال کرنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اب تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاتی نہیں ہو۔ دل میں تو آیا کہ کہہ دوں کہ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اس سے رابطہ بہت کم کر لیا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باہر آ کر کھڑا ہوا ہو، اور پھر مجھے ایک ہاتھ دکھائی دیا جو مجھے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے قریب پڑا گلدان اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ باہر جو کوئی بھی ہے وہ میرے لیے خطرہ ہے۔ میں گلدان ہاتھ میں پکڑے بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہاتھ میں جھریاں پڑی ہوئی تھیں اور کافی بوڑھا معلوم ہو رہا تھا۔ اب تو میرے خوف میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ایک مردانہ ہاتھ تھا اور ہمارے گھر میں کوئی بھی بوڑھا شخص موجود نہیں تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ اب ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ میرے پاس ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب موجود نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس طرف گئی اور زور سے دروازہ کھول دیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گیلری تھی اور گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے اس گیلری میں سے کوئی بہت تیزی سے باہر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک تو میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ یہاں پر کھڑا شخص اچانک ہی غائب ہو گیا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بجلی کی تیزی کے ساتھ بڑھا۔ یہ رفتار کسی بھی نارمل انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے خوف سے آنسو بہنے لگے۔ میرے دل میں اس وقت شدید درد اٹھ رہا تھا۔
और ये दर्द खौफ की वजह से था। अक्सर ही जब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी तब मेरा दिल यूं ही दर्द करने लगता था। मैंने इस बारे में डॉक्टर को भी बताया था और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये कोई ठीक अलामत नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। मगर मैं क्या करती, मैं शुरू से ही बहुत कमज़ोर दिल की मालिक थी और छोटी छोटी चीज़ें मुझे परेशान कर देती थी। यही वजह थी कि मैं अक्सर ही बीमार रहती थी। जब तक मैं अपनी अम्मी के घर पर मौजूद थी तब तक तमाम घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और कोई भी मुझसे ऐसी बात नहीं करता था जिससे मेरा दिल रुके या जिससे मैं ज़रा सी भी परेशान हूँ। मगर जब से मैं शादी करके ससुराल आई थी तब से मेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई थी। ना सिर्फ मेरी सास मुझसे बुरा सलूक करती थी, बल्कि घर का हर फर्द ही मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता था। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनका रवैया ऐसा क्यों है, जबकि मैं उनका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करती थी जिससे किसी का दिल दुखे। यहाँ तक कि घर का सारा निज़ाम भी मैंने संभाला हुआ था, चाहे घर की सफाइयाँ हों या खाना पकाना हो। मैं सारे कामों में आगे आगे थी। उसके बावजूद भी मेरी सास मुझे ताने देती थी और मुझे अपने शौहर की नज़रों में गिराने की कोशिश करती रहती थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वो अपनी माँ और बहनों के रवैये को बहुत अच्छी तरह से समझता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके खिलाफ नहीं जाता था, बल्कि वो मुझे ही सब्र करने की हिदायत करता और कहता था कि अगर मैं अपने माँ के खिलाफ चला गया तो उनका दिल दुखेगा, जबकि मैं अपनी माँ का दिल दुखाकर अपने लिए जन्नत हराम नहीं करना चाहता। एक तरह से देखा जाए तो उसकी बात ठीक भी थी, लेकिन उसे कम से कम मेरा ख्याल भी तो रखना चाहिए था। कम से कम उसे अपनी माँ से मेरे बारे में तो बात करनी चाहिए थी, मगर वो इस बारे में भी कोई बात नहीं करता था, बल्कि मुझे सिर्फ सब्र सब्र और सब्र की तलकीन करता रहता। मैं गुलदान पकड़कर उस तरफ बढ़ रही थी जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलदान पकड़ लिया हो। मैं वो गुलदान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा था। मैं इसे अपना वहम भी करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस वजूद की मौजूदगी में बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रही थी जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा था। अचानक ही उस वजूद का हाथ मेरे हाथ से टकराया। एक खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरा हाथ कांप उठा और गुलदान मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन ये क्या, गुलदान ज़मीन पर नहीं गिरा था, बल्कि अभी भी वो हवा में ही मौजूद था। यकीनन उसे किसी और ने पकड़ा हुआ था। मैं हैरत और खौफ से मुंह खोले उस गुलदान को देख रही थी जब मुझे अपने कानों में किसी की सरगोशी सुनाई दी, ये गुलदान बचा लो। और फिर इसके साथ ही वो गुलदान ज़मीन पर गिर गया। पूरे घर में शोर उठ खड़ा हुआ। शोर की आवाज़ सुनकर मेरा मासूम सा दिल कांप उठा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उस टूटे हुए गुलदान को देखने लगी, जबकि मुझे हाथ में अभी भी जलन का एहसास हो रहा था, और ये एहसास उस लम्स की वजह से पैदा हुआ था। अचानक ही मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो तीर की रफ्तार से चलती हुई मेरे करीब आकर खड़ी हुई। उसके साथ ही उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरे बाल जोर से खींचते हुए कहने लगी, तू रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रही है? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा इतना कीमती गुलदान तोड़ने की? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है? अरे, अगर तुम अपने घर वालों को भी बेच दो तब भी तुम इसकी कीमत पूरी ना कर सको। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। पहले ही अपने साथ बीते हुए वाक़ये की वजह से मैं खौफज़दा हो गई थी, और अब उसका ये रवैया भी मुझे डरा रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उससे माफ़िया मांगने लगी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे आज वो मुझ पर तरस खाने के मूड में ना हो। इसी वजह से उसने एक थप्पड़ ज़ोर से मेरे चेहरे पर मारा और मुझे डांटते हुए कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। अब तुम कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी।
सास की ये बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। उसी वक्त ही मेरी नंद कमरे से बाहर निकली। वो भी अभी गहरी नींद से जागी थी। इस वजह से उसका मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करेगी। लेकिन शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, इसी वजह से उसने मुझे कुछ नहीं कहा और 2-3 गालियां देकर दोबारा अपने कमरे में चली गई। उसके बाद सास ने मुझे ठोकर से ज़मीन से उठने के लिए कहा और ये भी धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा कभी उसकी नींद ख़राब करने की कोशिश की तो वो शौहर के हाथों मुझे तलाक दिलवा देगी। कभी कभार मैं सोचती थी कि मेरी सास ने अपने शौहर के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि मेरी सास में ज़रा भी सब्र नहीं था। वो न सिर्फ मेरे साथ ऐसा सलूक करती थी, बल्कि अक्सर तो अपने बच्चों का भी लिहाज नहीं करती थी। वो गुस्से की बहुत तेज़ थी और इसी गुस्से की वजह से उसका सारा ख़ानदान ही उससे दूर रहता था और मोहल्ले के लोग भी उससे पनाह मांगते थे। खैर, मैंने शुक्र अदा किया कि अपनी सास से मेरी जान छूटी और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में जाकर भी मुझे सुकून नसीब ना हुआ, क्योंकि कमरे में मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई चल रहा हो। अचानक ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और फिर अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। अब उसके साथ साथ मुझे किसी के गुनगुनाने की भी आवाज़ें आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई अंदर नहा रहा हो और उसके साथ गुनगुना रहा हो। एक बात का तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई और ही मखलूक है जो इस वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये मुझे क्यों तंग कर रही है। मैंने याद करने की कोशिश की कि गुज़िश्ता दिनों में किसी वीरान जगह पर तो नहीं गई। 1000 बार सोचने पर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि गुज़िश्ता पूरा हफ्ता मैं घर पर मौजूद थी, बल्कि मैं तो अपने कमरे से भी नहीं निकली थी। फिर ये अनजानी मखलूक न जाने कहाँ से मेरे पीछे चली आई। वो पूरी रात में डरती रही और दुआएं पढ़ती रही, लेकिन ये मखलूक एक लम्हे के लिए भी मेरे कमरे से नहीं गई। नींद की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं पा रहा था। वो पूरी रात में डरती रही और रोती रही। अगले दिन मेरी देर से आंख खुली। मैंने देखा कि मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। मैं तेज़ी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। बाहर मेरी सास खड़ी थी, जो मुझे चिल्लाते हुए पुकार रही थी और नाश्ता बनाने का कह रही थी। उसके साथ साथ वो मुझे गालियाँ भी दे रही थी और धमकियाँ भी कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर दरवाज़ा ना खोला तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। मैं तो दरवाज़ा लॉक देखकर ही हैरान रह गई, क्योंकि रात को सोने से पहले मैंने खुद दरवाज़ा खोला था। फिर न जाने ये किसने बंद कर दिया था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं इसी सोच में मुब्तला थी कि अचानक ही मुझे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी, जो इस वक्त दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। शौहर की आवाज़ सुनकर मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले कि सास मेरी तरफ बढ़ती और मुझे दोबारा मारती, शौहर ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया और अम्मा को कहने लगा, खुदा के लिए अम्मा, अगर एक दिन उसकी देर से आंख खुल गई है तो इसमें इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ तो ये आपके लिए सुबह सवेरे उठ जाती है, कभी कभार तो इसे बख्श दिया करें। शौहर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू खुशी के थे। इतने अरसे के बाद उसने मेरा साथ दिया था और मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। मेरी सास बातें करती वहाँ से निकल गई। शौहर ने जब मेरी लाल आंखों को देखा तो परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, मेरी नंद वहाँ पर आ गई और कहने लगी, अपने ये ड्रामे कमरे के अंदर जाकर पूरे कर लेना, फ़िलहाल मुझे नाश्ता बना कर दो, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जो गुस्से से अपनी बहन को देख रहा था। मुझे अपना शौहर काफ़ी बदला बदला मालूम हो रहा था। न जाने इस 1 हफ्ते में उसे क्या हो गया था
کہ یہ اب کچھ زیادہ ہی میری پرواہ کرنے لگا تھا۔ میں نے شوہر سے اجازت مانگی اور نند کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے ناشتہ بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میری بڑی نند وہاں پر آئی اور مجھے کہنے لگی، میرا نیلے رنگ کا جوڑا واپس کرو، میں نے وہ پہننا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے اس سے کوئی جوڑا نہیں لیا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کون سے کپڑوں کی بات کر رہی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو آپ سے کوئی جوڑا نہیں لیا، تو وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، میرے ساتھ یہ ڈرامے مت لگاؤ اور جلدی سے وہ جوڑا نکال کر دو۔ میں نے اسے کہا، قسم خدا کی میں نے آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی جوڑا نہیں لیا۔ چند لمحے تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر زور زور سے میری ساس کو پکارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام گھر والے وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ میری نند نے اب ان کے سامنے کہا کہ اس نے مجھ سے 2 دن پہلے میرا انتہائی قیمتی جوڑا لیا تھا۔ اس نے میری بہت منتیں کی تھیں اور میرے سامنے آنسو بھی بہائے تھے۔ میں نے اسے ایک شرط پر جوڑا دیا تھا کہ وہ مجھے مانگنے پر واپس کر دے گی، لیکن اب یہ مجھے واپس نہیں کر رہی۔ امی اسے کہیں کہ یہ خود کرتی ہے یا پھر میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی کروں۔ ساس مجھے دھمکی دینے لگی اور کہنے لگیں کہ ابھی کہ ابھی میری بیٹی کا جوڑا واپس کرو۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، وہ بھی حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری نند میرے کمرے میں چلی گئی اور میری الماری سے اپنا نیلا جوڑا نکال کر لے آئی۔ وہ نیلا جوڑا دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ یہ جوڑا میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، جبکہ میری نند یہ بول رہی تھی کہ میں اس سے مانگنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور تسلی دی کہ مجھے تم پر یقین ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں تھی کہ میرے شوہر کو مجھ پر یقین تھا۔ باقی اپنی نند اور ساس کی چالاکیوں سے میں اچھی طرح سے واقف تھی، اور شاید اب اس سب سے کسی حد تک میرا شوہر بھی واقف ہو چکا تھا۔ اس وقت میری ساس نے مجھے دل کھول کر باتیں سنائیں اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی دیتی رہیں، لیکن میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ میرا شوہر اس وقت میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ان سے بحث کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ پورے کمرے کا حال بگڑا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میرے شوہر کے تمام پرفیوم بھی زمین پر موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کمرے میں آئی تو یہ پہلے ہی سب کچھ ہو چکا تھا۔ خدا کے لیے مجھ سے تو جھوٹ مت بولو، میں نے خود باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں سنی ہیں اور اس وقت تم کمرے میں موجود تھی۔ اس کی بات سن کر میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر کون ہے جو مجھے اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہنے لگی، مجھ پر یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ کوئی اور مخلوق ہے جو ان دنوں میرے ساتھ رہ رہی ہے اور وہی یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو اب یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ جوڑے والی حرکت بھی اسی مخلوق نے کی ہے۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھوں کو جھٹکا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے، میرا پہلے ہی دماغ بہت خراب ہو چکا ہے، میں پہلے ہی سکون کی تلاش میں ہوں، مجھے یہ باتیں بتا کر مزید پریشان مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی میری نظر اپنے سامنے ایک کانچ پر پڑی جو کہ زور زور سے ہل رہا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری سانسیں رکتی جا رہی تھیں، اور پھر میری ٹانگوں کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ اچانک ہی باقی سارے کانچ بھی ہلنے لگے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کانچ میری طرف بڑھے اور میری ٹانگوں میں کھپ گئے۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ درد کے مارے میرا برا حال تھا۔
मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल के कमरे में पड़ी हुई थी। करीब ही मेरी सास भी मौजूद थी। वो गुस्से से मुझे देख रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो फिर से मुझ पर बरसने लगी और कहने लगी, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कोई और जगह तलाश करो। हमारे घर में मरकर हमारे ऊपर मजीद बोझ मत डालो। उनकी बातें सुनकर मैंने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। अब मैं उन्हें क्या बताती कि ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही, बल्कि कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। शुक्र था कि कांच बहुत अंदर तक नहीं गया था, इसी वजह से हल्के हल्के जख्म थे, मगर उसके बावजूद भी उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। 2-3 दिन तो मैं चल ही नहीं पाई। जब मैं थोड़ा थोड़ा चलने के काबिल हुई तो डॉक्टर ने मुझे दोबारा से घर भेज दिया, मगर इस बार मेरा घर आने का दिल नहीं कर रहा था। मगर अब मेरे पास ससुराल के अलावा कोई ठिकाना मौजूद नहीं था। घर में भाई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था और इसके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था कि जिसके पास मैं जा सकती। मैं घर गई तो शौहर का रवैया दोबारा से तब्दील हो चुका था। अब वो मुझसे मुंह फेर कर बात करता था और बात भी ऐसी करता था कि दिल दुखा देता था। मैंने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश की कि मैं बेकसूर हूँ, मगर वो मेरी बात पर यकीन करना ही नहीं चाह रहा था। वो सिर्फ उन बातों पर यकीन कर रहा था जो उसे नजर आ रही थी। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती। मैं अक्सर खुद से सवाल करती थी कि मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और इसका जवाब मुझे कभी भी नहीं मिल पाया था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरी हालत सुधरने के बजाय मजीद खराब होती जा रही थी। अब तो घर में ये नौबत आ गई थी कि लड़ाई झगड़े होने लगे थे। घर वालों को मेरी शक्ल की कोई लड़की दिखाई देती थी जो उनसे बदतमीजी करती थी, लेकिन वो लड़की मैं नहीं होती थी, और फिर आखिर में मेरी सख्ती आ जाती थी। मेरी सास ने मार मार कर मेरे जिस्म को लाल कर दिया था। उसके अलावा नंदे भी मुझे ताने देने से बाज नहीं आती थी। अब तो शौहर ने भी मेरी तरफ तवज्जो देना ख़त्म कर दी थी। उसे यही लग रहा था कि मैं एक झूठी औरत हूँ। उसे अपनी माँ की बातें सच्ची लगने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब अचानक ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन सामने कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक ही कमरे के अंदर ठंडी हवा आई, जिससे मेरे बाल उड़ने लगे। उस हवा में एक बहुत ही गंदी बू फैली हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख लिया, लेकिन वो फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे यूँ महसूस हुआ कि अगर मैं ज़्यादा देर तक इस कमरे में ठहरी रही तो मैं अपने होश खो दूंगी। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके साथ ही किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर मेरी नाक लगने की वजह से खून बहने लगा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। अब कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। मैं आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसने मेरा पाँव पकड़ा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा जान थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं आगे देखना ही भूल गई। मेरे बिस्तर के नीचे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। उनमें एक अजीब सी वहशत थी। मैं ज़्यादा देर तक उन आंखों में देख ना पाई और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर तमाम घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सास मेरे सर पर खड़ी थी। अचानक ही उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और अपनी सास की टांगों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मुझे तसल्ली देने की बजाय और मुझे उठाने के बजाय उसने मुझे दोबारा से लात मारी और मुझे पीछे धकेलते हुए कहने लगी, मनहूस औरत, मुझसे दूर ही रहो। खबरदार जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से हमारे घर में नहूसत फैल गई है।
कोई भी काम सीधा नहीं हो रहा। घर से बरकत उठ गई है। अब मैं मजीद तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने लगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे घर से बाहर निकालने लगी है। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म मत करो। मेरा तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। लेकिन मेरी सास मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। इससे पहले कि वो मुझे यूं ही घर से बाहर निकाल देती, मेरी नंद बोल पड़ी, अम्मी कम से कम इसे इस तरह घर से बाहर तो ना निकालें। मैंने और मेरी सास ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर बाद जब वो बोली तो उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इस कदर जालिम हो सकते हैं। मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़ कर उठाया और फिर उसके बाद उसने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसके साथ ही मेरी नंद भी मुझ पर टूट पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। शौहर घर पर मौजूद नहीं था और ना ही मुझे उसका कोई अता पता था। जब से हम दोनों की लड़ाई हुई थी तब से हम दोनों की आपस में बातचीत नहीं होती थी। ना तो मुझे उसके घर आने का पता चलता था और ना ही मुझे उसके जाने का पता चलता था। इसके अलावा अब वो कोई भी काम मुझसे नहीं करवाता था, बल्कि उसके ज़्यादातर काम या तो वो खुद ही कर लेता या फिर उसकी माँ कर लेती थी। काफ़ी देर तक मैं दरवाजे के आगे ही लेटी रही क्योंकि मेरे जिस्म से जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अचानक मुझे गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुनकर मैं खौफजदा हो गई। मुझे कुत्तों से बचपन से ही बहुत डर लगता था। खौफ की वजह से मैंने उठने की कोशिश की ताकि वहाँ से भाग सकूं, लेकिन दर्द की वजह से दोबारा ही ज़मीन पर गिर गई। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई औरत मेरे करीब आकर खड़ी हुई हो। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही मेरे देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गई। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। मजीद थोड़ी देर वहां पर पड़े रहने के बाद मैंने हिम्मत की और सीधी चलने लगी। इस मोहल्ले से मैं बाहर निकल चुकी थी। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गहरी खामोशी और गहरा अंधेरा फैला हुआ था, जबकि दूर जानवरों के गुर्राने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो कि माहौल को हल्का सा दहशतनाक बना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। अब मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी। मेरा जिस्म बिल्कुल जवाब दे चुका था। मैं चलती चलती न जाने कहाँ पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि मैं लड़खड़ा कर गिरती, अचानक ही 2 हाथों ने मुझे थाम लिया। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उससे ज़्यादा खूबसूरत नौजवान मैंने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा था। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। उसको मुस्कुराते देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक बहुत ही अजीबो गरीब जगह पर पड़ी हुई थी। ये वही वीराना था जहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं बेहोश हुई थी, यानी यहाँ मुझे किसी ने भी नहीं उठाया था। मेरे जहन में थोड़ी देर पहले वाला खूबसूरत शख्स आ गया। मैं बैठी उसी के बारे में सोच रही थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से बहुत तेज़ी के साथ गुजरा हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दाएं जानिब से गुजरा हो। मेरे देखने पर भी वहाँ कोई नहीं था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी शैतानी खेल का हिस्सा बन गई हूँ। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैंने हिम्मत की और वहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से दोबारा से ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ सकूं या फिर चल फिर सकूं। अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन मेरी ये मुस्कुराहट जल्द ही ख़त्म हो गई जब मैंने देखा उसके चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे हैं।
थोड़ी ही देर बाद उसकी जगह एक बहुत ही खौफनाक शख्स खड़ा था। उसके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे, जहां से खून टपक रहा था। इसके अलावा उसकी आंखों की जगह गोल गोल गड्ढे थे। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे की तरफ हटने लगी और फिर तेजी से भागने लगी। मैं पीछे देखे बगैर तेजी से भाग रही थी, जबकि अपने पीछे मुझे उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ही उसकी हंसी की आवाज़ गायब हो गई। मैंने हैरानगी से पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब मैंने सामने देखा तो मुझे जूते दिखाई दिए। यकीनन मेरे सामने कोई शख्स खड़ा था। गर्दन उठाकर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो कोई दरवेश नजर आ रहा था। उसने मुझे सहारा देकर उठाया। बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। मुझे बस उसकी ये आवाज़ सुनाई दे सकी। उसके बाद दोबारा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। तीसरी बार जब मुझे होश आया तब मैं एक झोंपड़ी में पड़ी हुई थी। करीब ही वो दरवेश बैठा हुआ था। उसने यकीनन कुरान पाक खोला हुआ था। वो सूरत की तिलावत कर रहा था और हर थोड़ी देर बाद मुझ पर फूंक मार रहा था। मुझे होश में आता देखकर वो फिक्रमंदी से कहने लगा, तुम पर किसी ने जादू करवाया है और ये जादू बहुत खतरनाक है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और उससे पूछने लगी, मुझ पर कौन जादू करवा सकता है। उसने कहा, उसके लिए मुझे एक अमल करना होगा, तभी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये किसका काम है। मैं उसके साथ बातें कर रही थी जब अचानक ही मेरी नज़र झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ पर वो खौफनाक शख्स खड़ा था। उसे देखकर मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। दरवेश ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे पास मौजूद हो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। थोड़ी देर बाद उसने अमल किया और मुझे बताया कि तुम पर यह जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी दोस्त है। मुझे ये जादू तोड़ने में तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे। जैसे ही ये जादू टूटेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सास का तुम्हारे साथ खराब रवैया भी उसी जादू की वजह से है और तुम्हारी नंदें भी तुम्हें इसीलिए पसंद नहीं करती क्योंकि ये जादू बहुत खतरनाक है। मैं हैरान हो रही थी, इसीलिए उससे पूछ डाला कि मेरी दोस्त मुझ पर यह जादू क्यों करवाएगी। दरवेश मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम्हारे शौहर की वजह से। दरअसल तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी दोस्त शुरू से ही उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर तुम्हारे सामने उसकी बातें भी किया करती थी। मैंने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की तो मुझे याद आ गया, वाकई वो मेरे शौहर में हद से ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी और अक्सर मुझे यही कहती थी कि तुम उसे छोड़ दो, मैं उससे शादी कर लेती हूँ। उसकी बातों को मैं हंसी मजाक में उड़ा देती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। फिर जब मेरी उसके साथ शादी हो गई तो अक्सर वो दोस्त मेरे घर आने लगी। वो मुझसे मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी लेकर जाती थी और मुझे कहती थी कि मुझे तुम्हारी चीज़ें बहुत पसंद हैं और मुझे इनसे तुम्हारी खुशबू आती है। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह उसे ना सिर्फ अपनी चीज़ें बल्कि अपने कपड़े भी दे देती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझ पर इस तरह से जादू करवा देगी। तकरीबन 2 दिन तक मैं उस दरवेश के पास रही और 2 दिन तक वो दरवेश अमल करता रहा। जैसे ही अमल ख़त्म हुआ मुझ पर जादू टूट गया। वो खौफनाक शख्स जो 2 दिन से दरवाजे पर खड़ा था वो शख्स भी गायब हो चुका था। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। हैरत की बात यह थी कि मेरा शौहर मुझे देखकर मेरे गले लग गया और मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगा। उसने मुझसे ये भी ना पूछा कि मैं 2 दिन कहाँ पर रही हूँ और किसके साथ रही हूँ। वो सिर्फ इस बात पर खुश हो रहा था कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरी सास का रवैया भी तब्दील हो चुका था और मेरी नंदें भी मेरा एहसास करने लगी थी। थोड़े ही अरसे बाद मेरी दोस्त मेरे घर आई। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं दिल में जहर रखने वालों में से हरगिज़ नहीं थी। 1 ही साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा।
جس سے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔